start with the class. Those who are at the back, please come in front. Okay. So in the last class, that was online. So we discussed dividend discount model and we did some questions. So write down one question. Let's do it. Okay. Let's move ahead. Write down. A firm is currently paying a dividend of rupees 2 per share. The rate of dividend is expected to grow at 5% for first 5 years. And 10% thereafter. Find the value of the share if the required rate of return is 15%. Is it clear? Okay. Now please understand this question. Please read yourself first. After that I will explain you what you have to do. Please go through it once. We did simple questions in the last class. Is question clear to all? What question says? There are two different growth rates. For the first 5 years, growth was 5% and thereafter 10%. But we have to calculate the present value of the share. We have to calculate P0. For that, first we need to calculate the dividends, present value of the dividend. This is what dividend discount model says. यही कहता है ना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जो भी आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलने हैं उनकी आज क्या वैल्यू है. दिस इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. हम डिविडेंड को डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के. ठीक है. आप में से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना सबको आता है कैलकुलेटर से या नहीं आता? नहीं आता. किस किस को नहीं आता? ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूं हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विद द हेल्प ऑफ सिंपल कैलकुलेटर. ओके, लेट्स okay, let's say you have to calculate the present value factor when KE is 10%. KE is 10%. So for the first year PVF will be 1 divided by 1 plus 0.1. This is for the first year 10%.
10% present value factor. Now if I say you have to calculate 7% for 3 years, how you will calculate? PVF 7 years for 3 3 years 7%, 3 years 7% या 7% के हिसाब से इसको लिख सकते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.07 की पावर 3. So this is how we calculate PVF factor. Is it clear? Is it clear? Okay. Now let's focus on this question now. Question says you have to apply dividend discount model and there are two different growth rates. So आपको गिवन क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में डी, कौन सा डी गिवन है आपको, कौन सा डिविडेंड गिवन है? D0. D0 how much rupees? Rupees 2. Can I calculate D1, D2, D3, D4, D5? Yes, sir. Is it possible? So D1 is D0 into 1 plus G. यही होता है. Calculate D1. 2.1. D1 comes out to be 2.1. D2 2.205. D2 सबको पता नहीं कैसे आएगा. आपको इसकी पावर क्या कर देनी है? 2 कर देनी है. Into again 1.05. Similarly you can find out D3. कितना? 3152. Okay. D4 2.4310. 1 हो गया ना बेसिकली. D5 Now tell me, is it clear to all? If you have any doubt in this, you can ask right now. G is growth rate 5% for the first 5 years. है ना, अभी उस पे भी आएंगे. So this is for the first 5 years dividend. Understood till now? Now what question says, आपको वैल्यू कैसे निकालनी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी. क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू. So you have to apply the PVF factor now. You have to apply the PVF factor. So 2.1 into how much K is given to you in the question? Required rate of return 15%. So into I can say into 1 divided by 1 plus 0.15. Similarly I can say into 1.1 divided by 1 plus 0.15 की power 2 into 1 divided by 1.15 की power 3. So, into 1 divided by 1.15 की power 4 into 1 divided by 1.15 की power 5. So you will be getting the present value of 15% गिवन है क्वेश्चन में. कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको? हाँ, एक बुक का ही है. हाँ तो ठीक है. क्या बेटा? This is from a different book. So what you have to do this is PVF factor. आप इसको, ये मैं सोचो बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, आप इसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं? अब जस्ट गिव मी वन कैलकुलेटर. आपने 1 किया डिवाइडेड बाय 1.15. आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो डायरेक्ट. जस्ट यू कैन राइट द वैल्यू 0.08695 और यू कैन से 0.87. अब दूसरी वैल्यू के लिए इसी को अगेन यू कैन डिवाइड. यहीं पे आप डिवाइड कर दो. किसे? 1.15 से. तो यू विल गेट दी second value, that is 0.756. Again this value with 1.15. So you will get 0.657. Again divide this value with
1.15, you will get 0.572. Divide this value with 1.15, you will get 0.497. आपको ऐसे नहीं कि बार बार उसको करना है, जस्ट कैलकुलेट, जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू विद 1.15, ये आ गई, डिवाइड दिस विद 1.15, so you will get PVF values. Now calculate the values, multiply 2.1 into this, 2.205 into this, 1.826, 1.667, 1.522, 1.389, 1.269. Now do the summation. 7.674. 674 है ना? So let's take उसका approximate ले लेते 7.68. Okay. So this is present value. Now if you have any questions till now you can ask, then we'll proceed to the second growth of this question. Any doubt till now? Understood? Okay. If you have any doubt you can ask right now, okay? Now, question says 5% growth for the first 5 years. After that, it is 10% for the infinite period. हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या हमारा फॉर्मूला होता था? D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G, यही होता था. अब वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P5, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ Y, क्योंकि 5 साल के बाद वो क्या है? 10% है. तो हम क्या P5 की हम निकालेंगे वैल्यू, किसकी निकालेंगे? P5. P5 वैल्यू कैसे आएगी? D6 K माइनस G इंटू PVF 15% 5 ईयर. आप क्योंकि आप आगे की बात करो P5 की, हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको डिस्काउंट कर देंगे. क्या कर देंगे? डिस्काउंट कर देंगे. सो D6 आप निकाल सकते हो इजिली. अब आपके पास ये क्या है? 2.5526. D6 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.1 से. रीजन बीइंग ग्रोथ कितनी होगी है? 10%. सो कैलकुलेट D6. D6 is 8. ओके. K ही आपको गिवन है क्वेश्चन में. ग्रोथ आपको गिवन है 10%. कितनी गिवन है? 10%. 0.15 माइनस 0.1. PVF 15%. 5 ईयर आपने अभी निकाला है यहां पे. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P5. कितना है? ओके, इन्होंने शायद कुछ अप्रॉक्सीमेट लेट में चेक 2 पॉइंट, ठीक है. दे हैव टेकन इट एज 2.81, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस है. सो P5 comes out to be P5 27.9. ठीक है. So this is the value of P5. Now you have to calculate the P0. क्या निकालना था आपको? P0 निकालना था. अब P0 कुछ नहीं है. P0 is just the summation. ये आपने जो है निकाला था this, that is 7.68 plus 27.9. This is your P0.
58. So this is the value. This is the intrinsic value of the share. Now, those who have doubt can ask right now. We are done with this question. फिक्स कौन सा कोई पार्ट बेटा इसमें यही पूछ रहे हो ये वाला हाँ 15% 5 ईयर डिस्काउंट कर रहे हैं ना उसको क्योंकि हम फिफ्थ ईयर का पीवीएफ इटसेल्फ मींस हम 5 साल का ही है ये पीवीएफ फैक्टर अगर हम 5 साल आगे की बात कर रहे हैं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए वो है ये दिस इज लाइक 5 साल बाद को अगर हम डिस्काउंट करेंगे आज तो क्या वैल्यू होनी चाहिए तो वो फैक्टर है वो अगर 5 साल बाद हमें 1 रुपया मिलना है तो उसके बदले हम आज 4.97 ले सकते हैं गेटिंग माई पॉइंट अगर मुझे 100 रुपए मिलने हैं 5 साल बाद उसको अगर मैं आज लेता हूं तो मुझे कितने मिलने चाहिए 49.7 रुपीज मिलने चाहिए दिस इज द मीनिंग नाउ दोज हु हैव डाउट कैन आस्क आगे समझ सबको अभी इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन भी करने हैं हमें जहां पे 3 ग्रोथ रेट हो सकती हैं अच्छा यहां पे हाँ बिल्कुल आप तो भी आयो समझ आएगा भी नहीं है ना और बैठे भी वहां जाके अकेले जो सॉल्व कर रहे हैं उनके साथ नहीं बैठे अगर आप किसी के साथ बैठेंगे तो आप पूछ सकते हो समझने के लिए यहां एडजस्ट कर लो किसी के साथ अब वहां जाकर उन्होंने भी नहीं किया होगा वहां बैठो जिसने सॉल्व किया है जिसको समझ आया है ओके क्लास एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन आगे समझ अच्छे से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन settle down fast okay next question write down class Mr. X wants to invest not talking Mr. X wants to invest in a company that has just given dividend of rupees 3 per share dividends are expected to grow at 20% for 10 years and 8% thereafter for 10 years and 8% thereafter find the value of the equity share if the required rate of return of Mr. X is 10%. In short, you can write required rate of return is 10%. KE is 10%. Sir, find the value of equity share then after tax.
8%. So I am giving you 5 minutes. This is same question that we did just now. अब आप एक बार सॉल्व करोगे तो आपको अपने डाउट्स आएंगे, है ना? देन यू कैन आस्क. इस यूनिट में ये सबसे टिपिकल क्वेश्चंस यही हैं. ऑल अदर आर वेरी मच सिंपल. ये नीचे वाली क्लास में काफी हंगामा है. बेटा बात है नहीं. अब वहां कोई है नहीं जिसको हम कहे कि जाओ देख के आओ. अगर कोई है तो मैं कह देता हूं एक बार. जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई एम कमिंग इन जस्ट 1 minute. ओके? Just go step by step only, okay? Go step by step. Calculate dividends. Apply PVF. Do the summation. हाँ आप लिख सकते हो, लेकिन आपको आप D1 निकालोगे तो आपको ऐसी पावर ऑटोमेटिकली उसकी 1 ही है. n का मतलब है अप टू nth पीरियड बेसिकली, है ना? तो आप सेकंड में क्या लिखोगे? तो बेसिकली आप D1 लिख रहे हो तो आपको पावर लिखने n लिखने की नीड ही नहीं है कुछ. क्या है? 1 ही है. अगर आप D2 ले रहे हो तो आपको पावर 2 लगानी पड़ेगी. एक काम करके आओ, इसकी जो नीचे रूम है ना, वहां से बहुत आवाजें आ गई. उनको डांट लगा के आओ. उनको तो क्लास लगे ऊपर. देखो आवाजें आ गई ना, बिल्कुल एकदम नीचे. यही स्टेयर्स है यहाँ पे. उनको अच्छे से डांट लगाना और कहना क्लास लगे ऊपर. ठीक है? एक काम करो, 18 रूम नंबर है ना, 18 रूम नंबर के जो नीचे वाला रूम है, वहाँ से बहुत हंगामा लड़ाई और करें बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको चुप करा दो एक बार. फ्लोर पे हमारा है ही नहीं. अच्छा है ही नहीं तो दूसरों का होगा. सिक्योरिटी गार्ड को बोलो. अच्छा ओके क्लास डन. Sum of dividend after present value. How much?
It is around rupees 49.9. It is given 49.9. Yes. So we can, you can ask. क्या हुआ? 49.9 आ गया ना? Good. Security and investment portfolio management. हाँ कुछ जो थ्योरी ऑफ डोमिनेंस है ना, इसके 3 रूल्स हैं। मैंने अप्लाई कर रहा था। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लास्ट ईयर की जितने भी लोगों ने फाइल करी है कि हाँ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लिस्ट निकाली। 2013 कंपनीज हैं। अब इसमें डोमिनेंस के हिसाब से मुझे इनका रिस्क और रिटर्न निकालना है। ठीक है। कैसे निकालूँ? और देख, 2013 कंपनी, अगर मैं एक एक की इंडिविजुअली 5 ईयर की निकालने बैठूँगा तो हालत ख़राब है। देखो रिस्क आप किससे मेजर करो? पॉइंट इज आप उनका बीटा देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बीटा से निकालूँ इंडस्ट्री। तो बीटा इज ऑलरेडी गिवन। बीटा तो ऑलरेडी गिवन, आपको निकालने क्यों है? वो तो आप उसका लिखोगे तो आपको ऑलरेडी बीटा मिलेगा, एक कंपनी का ऑलरेडी गिवन है वो तो। इज देयर एनी वेबसाइट जहाँ पे ये 2 चीज़ें अवेलेबल हो? बहुत सारी वेबसाइट्स है, आपने ईटी मार्केट्स देखोगे या मनी कंट्रोल, आपको काफ़ी डेटा मिल जाएगा। और एनएससी की वेबसाइट पे काफ़ी डेटा है। रिटर्न, आप रिटर्न किससे कंपेयर करो? उस कंपनी का जिस प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो उसी कंपनी का रिटर्न, तो डेटा इज ऑलरेडी गिवन। आपको ईयरली डेटा गिवन है, डेली का गिवन भी है, मंथली गिवन भी है। सो जस्ट ओपन, जस्ट you will be getting the CVS file, Excel, that is convertible into Excel. आप Excel में आप उसको put कर, just copy and paste. After that just apply one syntax and just scroll down. You will get all the returns. If you want to look for yearly, daily, you will get answer. And beta is already given. Okay class, done. 436. Answer is 437 only. Approximately वही है. Okay class, done with this question. PN. P10. How much? 387.1. So D11 is basically 20.06 divided by KE minus G, that is KE is 0.1. KE is 0.1, G is 0.08. Point 1 KE minus 0.08 comes out of 1003 into PVF 10th year 10%. I think you forgot to apply PVF. आपने PVF लगाया है या नहीं लगाया है? चलो ध्यान कर, एक सेकेंड 20.06 divided by 0.02
comes out to be 1003. 1003. पीवीएफ 10%, 10 ईयर कितनी वैल्यू पीवीएफ की? 0.386 इंटू 0.386 आ गया ना? तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग ना, पीवीएफ लगाना भूल गए. Okay, done. Any doubt in this question? You can ask right now. या जिसको समझ नहीं आया है, ये कोई डाउट है, you can ask right now. Yes. P11 की. P11 is basically D11 divided by KE minus G into PVF 10%, 10 years का. That's it. This is P11. D11, D10 जो आपने निकाला था into 1 plus G जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 plus 0.08 because after 10 years it is 8%. This is we are calculating present value. We are calculating the P0. For that we need to do the summation of all the dividends after converting into present value plus the value of this. This is basically we are calculating the present value of the share, intrinsic value. Okay class, done? आगे समझ आप दोनों को? कुछ सॉल्व किया आपने खुद से? कहां तक आ गया? D10 आ गया, प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट होगी. ठीक है, आपने P11 निकाला तो सॉल्व करो. P11 कैसे निकलेगा? D10 आपके पास है 20 पॉइंट समथिंग, कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? उनको D10 आपका कितना है? D10 कितना था आपके पास? 18.57 इंटू 1 ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस 0.08, क्योंकि अब ग्रोथ कितनी है? 8% देयर आफ्टर. यही गिवन है ना क्वेश्चन में, 8% देयर आफ्टर. सो 18.5 जो भी वैल्यू है इंटू 1 प्लस 0.08, कितना आया वैल्यू बताओ? 1 प्लस 0.08. How much it comes out to be? It comes out to be 20.06. $20. 1.08. Growth is 8%, not 80%. 1.08. 20.06. So this is your D11. This is your D11. K is given to you in the question. 0.1. 10% required rate of return. 0.1. G is 0.08 now. 8%. So you can calculate, apply. Do it. 20.06 divided by 0.1 minus 0.08. Write down 20.06 divided by 0.1 minus 0.08 and multiply this with PVF 10% 10 year. कितनी वैल्यू है? कितना PVF फैक्टर है? 0.386 इंटू 0.386. बताओ कितनी वैल्यू है आपकी P11 की? 0.386 है. 0.386. How much is the value?
नहीं, मैं इनपुट नहीं इसमें। 387.16 है ना, दिस इज द वैल्यू। अब आपने जो भी डिविडेंड्स निकाले थे D10 तक, आपने उनमें पीवीएफ लगा लिया था, उसका समेशन कितना आया था, तो निकालो उसका समेशन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1 अप टू D10, प्रेजेंट वैल्यू अप टू D10, find out the summation quickly. Yes. जैसे अभी हमने P10 की कैलकुलेट की, ये कैलकुलेट करके इसको माइनस करके जो 0.02 आ रहा है, 0.02 को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा पहली बात तो P10 नहीं है, अब वो P11 है ये, 11 है। और इनटू में पीवीएफ आपने लगाया नहीं अभी। अच्छा हाँ, सॉरी पीवीएफ मिला। क्या क्वेश्चन आपको P11 क्यों है? ओके क्लास, P11 ये इसलिए है क्योंकि P11 से जो वैल्यू है वो आपकी जो ग्रोथ है कांस्टेंट है वहां से। दिस इज द रीजन वी हैव टेकन P11। टीचिंग डाउनस्टेयर्स और आवाज का को बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ नीचे हमें यहीं से फर्स्ट फ्लोर से आ रही है वो, फर्स्ट फ्लोर से आ रही है। हमें लगा फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, मैंने नीचे कहा भी इनको फर्स्ट फ्लोर से आवाज आ रही है, या तो फिर ग्राउंड फ्लोर से आ रही है वो। आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर। नहीं, okay class, any doubt in this question now? Is it clear to all? आ गया समझ? अब टाइम से आओगे क्लास में तो भी समझ आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question class, write down. Let's do one last question of such type questions, okay? After that we'll do some other thing. Mr. A wants to invest in a company that has just given a current dividend of ₹5 per share. So आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? D0, करंट मतलब दे दिया, अभी दिया है, so this is D0 only. Last year paid, just paid, current paid is D0. Expected to pay, will be paying after 1 year, will be D1. Okay. Dividends are expected to grow at 10% for 5 years, comma, at 8% for next 3 years, 8% for next 3 years, and 5% thereafter, 5% thereafter. Find out intrinsic value if required rate of return is 10%. If the actual market value or price is ₹100, should he buy this share?
शुड ही बाय दिस शेयर। अच्छा यहाँ गलती थी क्योंकि D11 था तो यहाँ आपका वो आना था P10 आएगा, है ना, क्योंकि D11 था तो P10 आना था, गलती से बाय मिस्टेक लिखा हुआ वो। Should he buy this share if actual price is ₹100? Now the question is, अगर आपकी वैल्यू P0 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है आती है, तो वो बाय करेगा बिकॉज ही इज गेटिंग एट लेस प्राइस, बिकॉज ही इज गेटिंग एट लेस प्राइस। इफ आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है लेट से वो आती है 90 रुपीज, तो वो बाय नहीं करेगा, रीजन बीइंग मार्केट में ओवर वैल्यूड है वो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। आप D1 D अप टू D कितने गिवन थे फर्स्ट में, 5 इयर्स, 5 इयर्स तक सेम क्वेश्चन करोगे पहले, उसके बाद आपको पीवीएफ वही लगेगा एज इट इज नेक्स्ट ईयर का, लेकिन जो जी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि D6 में आने के बाद आपका क्या चेंज हो जाएगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां 0.8 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 0.1। तो D6 D7 D8 आप ऐसे निकालेंगे और उसके बाद हम वापस इस पे आ जाएंगे उन सबका समेशन करने के बाद। स्टार्ट डूइंग इट। क्या बेटा, बिल्कुल वो 5 ही आएगी, बिल्कुल एज इट इज 5 आएगी वो, क्योंकि आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1.1 से डिवाइड कर रहे हो। इट विल बी 5 ओनली। क्या हुआ बेटा, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन में पीवीएफ फैक्टर लिखे हैं तो आप उनको एज इट इज यूज भी कर सकते हो, क्योंकि 10% ही था ना लास्ट क्वेश्चन में, शायद के 10% ही था कि, सो यू कैन यूज दैट पीवीएफ फैक्टर एज इट इज। Also at present value है तो basically बोलो। D2 का वो चेक कर लो, नहीं 5 ही आएगा ना, आफ्टर प्रेजेंट वैल्यू बिफोर प्रेजेंट वैल्यू,
कौन से पार्ट के क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? तो 5 आएगा वो तो एज इट इज। सर मैंने D05 हो गया, D1 की पूरी कैलकुलेशन करी, ग्रोथ प्लस PV, ठीक है, एंड D2 की कैलकुलेशन है, सर आप देख लीजिए। इसको भी तो 2 से करोगे, ओके एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 आएगा। एंड दिस इज प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली, नॉट D2, दीज आर द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ डिविडेंड्स, दीज आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा फिर तो, ये यहाँ पे आके change ये 5 D5 तक आपकी 5 ही आएगी बिल्कुल। Yes, answer is 138.8. So this is the P0. आगे सबका आंसर डन, ओके। सॉल्व कैसे करना है? मैंने 5 तक निकाला, डन। 5 के बाद मैंने 3 इयर्स का 8% 3 इयर्स तक 8% पे निकाला, डन। उसके बाद 5 ईयर मूव ऑन है, तो पहले तो आपको 5 इंटू 1.1 5 पावर तक तो लेके जाना पड़ेगा उस वैल्यू को पहले। 2 3 4 5, अब 6 लिए इंटू कितना ग्रोथ है उसके बाद 1.08, into 1 point, this is your D6 now, into 1.08 D7, सॉरी तो ऐसे आपको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद एक्चुअली मैंने स्टार्ट में मिस कर दिया। आप उसके प्रेजेंट वैल्यू सबकी कन्वर्ट कर लोगे वैल्यूज को, प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड्स करने के बाद। दिस क्वेश्चन सेज यू हैव टू कैलकुलेट दी, तो आपको क्या निकालनी है उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P8, क्या निकालनी है P8, P8 क्यों निकालनी है? क्योंकि 8 ईयर्स तक सेम है, तो हमें उसके जो बाद में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए वो निकालना है। लाइक हम P0 निकालते थे पहले, याद होगा ना आपको, P0 is equals to D1 divided by K minus G। नाउ वी हैव टॉकिंग अबाउट 8 साल आगे की बात, तो इसमें हम 8 ईयर की तो इसलिए 0 plus 8 8 P8, so P8 says D9 9 डिवाइडेड बाय K minus G, और हमें क्या निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, तो हम क्या लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई उसको कर देंगे 8 ईयर्स कितने परसेंट 8 ईयर्स के 10% के साथ, 10% K गिवन है ना आपको ऑलरेडी, क्वेश्चन गी इज 10%। सो समेशन ऑफ दिस एंड दिस कम्स आउट टू बी P0। ओके, समेशन ऑफ दिस इक्वेशन प्लस समेशन ऑफ यहाँ 8 साल तक। बिल्कुल, हमारे पास क्या आ जाएगा P0 आ जाएगा। कितना आंसर है आपका? नो, वेर आंसर इज 138.8, आंसर इज 138.8। ओके, so you must buy, answer is buy, because you are getting at less price, share is cheaper। Done with this question? किसका नहीं हुआ? Raise your hands। 139 हो सकता है, आपने कुछ ज्यादा ही आपने क्लोज ज्यादा वैल्यू ली हो तो, हाँ तो हो फिर पॉसिबल है। सो आपको क्या बेसिकली समझने क्वेश्चन में, देखो बच्चों, बेटा आपको बेसिकली क्या समझना है, इससे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अपने माइंड में ध्यान रखने हैं, ध्यान से सुनना।
पहले तो आपको जितने साल का ग्रोथ गिवन है अलग अलग, उनके आपने डिविडेंड निकालने हैं आफ्टर अप्लाइंग ग्रोथ, उनको आपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया, पीवीएफ फैक्टर लगाया। आपके पास डिविडेंड्स की क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास जहां से ग्रोथ रेट कांस्टेंट थी, देयर आफ्टर ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, आपने वहां की वैल्यू निकालनी है। लाइक इन दिस क्वेश्चन आपको क्या निकालना था, P8 निकालना था, क्योंकि 8 साल तक ग्रोथ क्या थी, अलग थी, और उसके बाद क्या थी, 8 साल के बाद कांस्टेंट थी। तो आपने क्या निकालना था, P8 निकालना था। और P8 निकालने के लिए डिविडेंड कौन सा आएगा, D9, D9, और डिवाइड किससे होगा, K माइनस G। दिस इज योर P8, और इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। आज की वैल्यू में क्या किया था, हमने इसको कन्वर्ट किया, तो हमने क्या लगा दिया था, पीवीएफ इंटू 10% 8 ईयर्स, 10% 8 ईयर्स, तो क्या हो गया था, वो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब आपके डिविडेंड्स भी प्रेजेंट वैल्यू में, आपकी वाली वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू है, दोनों का समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, P0, जो आज की शेयर की वैल्यू है, जो उसकी वर्थ है। So you can write steps, or you can just understand these steps, then only you will be able to solve this question. हम हर चीज को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का मतलब कि आज उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी आर अप्लाइंग पीवीएफ फैक्टर। आप सब में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस किसने पढ़ा हुआ है, तो पीवीएफ तो सबको याद होगा, है ना, आज की वैल्यू निकालने के लिए। और सीवीएफ किसके लिए यूज होता है, एक क्वेश्चन और, पीवीएएफ याद है, अगर सेम वैल्यूज आती हैं तो हम उसको एज इट इज पीवीएएफ लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है, लेट्स गो अहेड नाउ। Write down next question. Write down. Mr. X has required rate of return of 16%. Mr. X has required rate of return 16%. So K is given to you. K is given to you. He has made investments in the shares of ABC Limited, shares of ABC Limited using Gordon's model, using Gordon's model. Find the value of the share if ABC Limited using Gordon's model. Gordon याद है सबको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने किया होगा, वॉल्टर गॉर्डन। Gordon's model, find the value of the share if EPS is rupees 10, EPS is rupees 10, return on investment 20%, return on investment 20%, and retention ratio is number 1 0%, number 2 40%, and number 3 60%. Okay.
Okay, class. This is Gordon's formula. If you all remember, present value of share is equals to E. E means earnings, earnings per share, into 1 minus B. What is B? Retention ratio. B is retention ratio. If dividend payout is 40%, तो retention कितना होगा? 60%. So basically dividend payout plus retention is 100%. आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 40 रुपए दे दिए तो कितने बचे आपके पास? कितने रिटेन हुए? 60 रुपए. सिंपल. या तो आप बांट रहे हैं पैसा डिविडेंड में या अपने पास रख रहे हैं. जो रख रहे हैं वो क्या है? रिटेंशन है. Divided by KE. KE is required rate of return minus B into R. B is again retention. R is return on investment. और अगर हम B into R कर दें तो क्या होता है? ग्रोथ कहते हैं उसको. So can you solve this question? 3 cases, 0%, 40 and 60% retention. At 0% it is 62.5. 62.5. Now everybody solve quickly. Question is very much simple. No, it is not 81. Yes, 40% at 40%. Answer is right. At 40% retention, it is 75. Hundred. Absolutely. So answer is 62.5, 75 and 100. Is it clear to all? जिसको डाउट है, you can ask right now. जिसको समझ नहीं आया, जिसका आंसर नहीं आया, ask right now. सेकंड वाले का नहीं आया, ठीक है. चलिए बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. सो क्या डेटा गिवन है आपको क्वेश्चन में? ई कितना गिवन है आपको? ₹10. ओके. के कितना गिवन है? 16. ओके. और ठीक है. और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20.2 कह लो या 20 कह लो, एक ही बात है. ठीक है. चलिए पार्ट 1 सबका आ गया 62.5. तो पार्ट 2 में रिटेंशन कितनी गिवन है आपको? 40%. V is given to you 40%. 1 second. Hello? 931847700841 041.
हो गया? वो मैंने तो भेज रखा है व्हाट्सएप पे। ठीक है। ओके क्लास, okay class, look here. So this is the formula basically. Part 2 कर रहे हैं where retention is 40%. So P0 is equals to, E is given you 10 rupees, 1 minus 0.4, retention B कितना given आपको 40%, KE 16%, 0.16 minus B into R 0.4 into 0.2. So 10 into 0.6 divided by 0.16 minus 0.08. Calculate. आगे आंसर 75. Understood? Any doubt in this question now? Okay, next question. Okay, class, no talking. Next question, write down. Annual turnover rupees 50 lakhs. बेटा बात है नहीं. Annual turnover rupees 50 lakhs. Operating profit 20%. Equity share capital, operating profit 20%, equity share capital 20 lakhs, in the bracket write down face value rupees 100, face value rupees 100, 20 lakhs, face value rupees 100, capital reserves 5 lakh, 12% preference share capital, 12% preference share capital 20 lakhs, 10% loan 10% loan 10 lakhs, 12% debenture 10 lakhs, tax rate 30%, dividend payout ratio 50%, PE ratio 30, 30. Find out number 1 EPS, earning per share. Number 2 DPS, dividend per share. Number 3 market price. Number 4 earning yield. And number 5 dividend yield. Okay.
Okay, now let's understand this question. आप सबको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सेल्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिवेंचर, प्रेफरेंस, ये सब आपको गिवन है. सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट अर्निंग प्राइस पर शेयर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे आपको क्या निकालना है? अर्निंग प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर. उसके बाद हम बाकी चीजें सॉल्व करते रहेंगे. ठीक है. सो पहले आपको प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 20% ऑफ 50 lakhs. तो कितना हो गया? यू कैन सॉल्व साइड बाय साइड. 10 lakhs. तो इसमें से हम सबसे पहले क्या पे करने वाले हैं? इंटरेस्ट लोन्स के ऊपर. कितना गिवन है? $10 lakhs होगा. कितना गिवन है? अच्छा 10% 1 lakh आ गया. ठीक है. सो लोन का माइनस लोन इंटरेस्ट 1 lakh और 12% डिवेंचर्स. सो बैलेंस इज अर्निंग बिफोर टैक्स और कैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कितना आया? 7,80,000. अब क्या माइनस होगा इसमें से? टैक्स. कितना गिवन है टैक्स आपको? सो 30% ऑफ दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 2,34,000. आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर कितना आया? 5,46,000. अब क्या माइनस होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड. सो माइनस 12% of 20 lakhs comes out to be 2,40,000. कितना आया बैलेंस? 3,06,000. So this money belongs to equity shareholders. Absolutely right. Number of shares कितने आपके पास? 20 lakhs को आपने डिवाइड किया 100 से, कितना आ गया? 20,000. EPS is 3,06,000 divided by 20,000. कितना आया? 3.3. 15.3. So earning per share is 15.3. How much value was given? 20 lakhs. Face value 100 थी. तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 20 लाख से, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 20,000. यस. ओके. क्वेश्चन में गिवन है 12% प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर. 20 lakhs के शेयर्स हैं, तो 20 lakhs को 12% देंगे तो कितना आएगा? 2,40,000. 2,40,000. Okay class, now you have all the information. Now let's calculate the जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में कहा गया निकालने के लिए, हम उसको निकालते हैं. अब चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था निकालने के लिए? ईपीएस. ऑलरेडी डन. उसके बाद डीपीएस. आपको डिविडेंड पे आउट कितना गिवन है? 20%. सो डीपीएस इज बेसिकली 50%. तो 15.3 into 0.5, 7.65 इज योर डीपीएस. उसके बाद क्या निकालना था? मार्केट प्राइस. कैसे निकलेगा? बिल्कुल. पी रेशियो कितनी गिवन है क्वेश्चन में आपको? 30.
इंटू ईपीएस 15.3 कितना आ गया 459। उसके बाद क्या निकालना था क्वेश्चन में अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का मतलब है एक्चुअल में आपको मार्केट प्राइस से हम देखते हैं कि उसको कितना मिला। अर्निंग पर शेयर कितनी थी डिवाइडेड बाय 459 मार्केट प्राइस इनटू 100 कितना आया परसेंट में कितनी 3.33 15.3 डिवाइडेड बाय 459 3.33% कौन सा होगा? दिस इज अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड बेसिक मीन्स आपका अर्निंग प्राइस शेयर कितना है उसको हम डिवाइड करते हैं मार्केट प्राइस से और परसेंटेज के लिए इनटू 100। यील्ड मीन्स यील्ड में यूजुअली वी कंपेयर विद द मार्केट प्राइस। उसके बाद क्या निकालना था डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड कितना दिया मार्केट प्राइस कितना है इनटू 100 1.66%। दिस इज योर डिविडेंड यील्ड। थर्टी कहां से है क्वेश्चन में गिवन है पी रेशियो। आपको फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस इज पी रेशियो इनटू ईपीएस अर्निंग पर शेयर। पी इज ऑलरेडी गिवन 30, ईपीएस आपने निकाल लिया था। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ट्रीटमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या गिवन ना होता वो तो हम निकाल ही नहीं सकते। फिर तो कुछ तो गिवन होगा, या तो रिटेंशन गिवन होगा या पे आउट गिवन होगा। बेटा डीपीएस इज बेसिकली आप अर्निंग जो आपकी हुई है उसमें से आपने कितना परसेंट दिया वो डिविडेंड पर शेयर है। आपने कहा कंपनी ने लेस से 10 रुपए कमाए एक शेयर के ऊपर, कंपनी ने बोला हम 20% देना चाहते हैं तो कंपनी 2 रुपए दे रही है। बस सिंपल सा बात ये है। जो पैसा कंपनी अर्निंग में आ रहा है या तो कंपनी अपने पास रखेगी या आपको देगी। कितना देगी कितना रखेगी कुछ तो गिवन होगा क्वेश्चन में, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट। कौन सा बेटा कौन सा डिविडेंड कितना डिविडेंड दिया डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। यील्ड के लिए हम किससे देखते हैं मार्केट प्राइस से देखते हैं एक्चुअल में क्या है इस टाइम। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटर्न ऑन इक्विटी। बेटा बात है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, 15। अर्निंग पर शेयर ₹5। डिविडेंड पर शेयर ₹2। Required rate of return 10%. You are required to compute its expected growth rate, price and PE ratio आप एक काम करते हैं जहां आपने ईपीएस लिखा ना उसके आगे आप लिखो एक्सपेक्टेड ईपीएस है, दिस इज एक्सपेक्टेड। और डिविडेंड में भी लिखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर।
नहीं तो उससे क्या होगा, D0 D1 में कंफ्यूजन आ जाएगा. जस्ट राइट डाउन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड EPS. ग्रोथ इज 9% है ग्रोथ. ओके क्लास, आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, फिर हम डिस्कस करते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल डेट आपको गिवन है क्वेश्चन में. डन विद योर अटेंडेंस? अटेंडेंस मार्क कर ली सबने अपनी अपनी? वेयर इज अनदर शीट? अटेंडेंस शीट कहां पे बेटा दूसरी आपके पास? आप किसके पास है? अटेंडेंस शीट कहां पे है? उधर दे दी थी. बेटा जिस अटेंडेंस शीट है तो दे दो, नहीं है तो नहीं तो आप सब इसी शीट में मार्क कर लो अपनी अटेंडेंस, अगर नहीं मिसप्लेस हो गया तो. ओके क्लास, आया? ग्रोथ आ गई सबकी? नहीं आया? कितनी आ रही है? बेटा आप तो वहां से खड़े हो जाओ. हाँ, ये आगे बैठ जाओ, बाहर चले जाओ. पढ़ना आपको है नहीं. अभी तो आए हो, क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कभी बातें कर रहे हो. या तो आगे बैठ जाओ, बाहर जाना बाहर जा सकते हो. क्या 65? प्राइस 65? वो भी गलत है, गलत है. चलो बेटा, किया सॉल्व? कुछ नहीं हो पा रहा. चलिए, आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है. ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं. चलो, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? रिटर्न ऑन इक्विटी कितना गिवन है? 15%. और क्या गिवन है? कितना? ₹5 2. दैट्स इट. ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन आपने भी गॉर्डन मॉडल किया था ना? ग्रोथ का क्या फॉर्मूला था? BR. आर आपको ऑलरेडी गिवन है 15%. कितनी गिवन है? तो एक चीज तो हमारे पास ऑलरेडी है. एक चीज है, आपको क्या चाहिए अब? बी चाहिए. एक्सपेक्टेड EPS कितना था? 5. डिविडेंड कितना गिवन है? 2. 40. तो 3 रुपए रिटेन हो गए. तो 60% रिटेन हुआ. 5 में से मैं 3 रुपए रख रहा हूं तो रिटेन कितना हुआ? 5 रुपए में से मैंने 2 दिए तो 3 रुपए रखे ना, तो कितना रिटेंशन कितना हो गया? 60%. 0.6 इंटू 0.15 कम्स आउट टू 0.09. 9%. बताइए, सिंपल था? एनी डाउट इन दिस? चलिए, क्या चीज समझनी है आपको? एक्सपेक्टेड EPS कितना गिवन था? तेज बोलो थोड़ा. क्या EPS कितना गिवन था बेटा? अर्निंग पर शेयर. डिविडेंड कितना दिया? आवाज निकालो थोड़ी.
₹2 तो रिटेन कितना किया? ₹3। 5 का 3 कितने परसेंट हुआ? 60%। 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 कितना हुआ? 60%। तो 0.6 हो गया ना रिटेन। रिटर्न कितना गिवन था क्वेश्चन में? 0.15 इंटू 0.6 0.09 9%। क्लियर? और क्या निकालना था आपको क्वेश्चन में? प्राइस। गलत। चलिए प्राइस हम कैसे निकालते हैं? D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। D1 आप ऑलरेडी गिवन एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो, तो कितना हो गया? 2। K ऑलरेडी गिवन है कितना? 0.1। G आपने निकाल लिया। G आपने भी अभी निकाला है, कितना आ गया? क्या हो गया? क्या हो गया? 200। अब तो आएगा, अब क्यों नहीं आएगा? था ना सिंपल क्वेश्चन। बल्कि जो आपने डिविडेंड वाले लेंथी क्वेश्चंस किए थे कितने इजी है ये। और क्या निकालना है क्वेश्चन में? पी रेशो। पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। प्राइस कितना है आपका? प्राइस रेशो निकालनी है तो 200 आपका प्राइस आ गया। ईपीएस ऑलरेडी गिवन है 5, तो कितनी आ गई पी रेशो? सो दिस वाज द क्वेश्चन। पी रेशो बेटा टाइम्स में बेसिकली ये, दिस इज नॉट इन परसेंटेज। इट मींस आपका प्राइस आपकी अर्निंग से कितने टाइम्स है। आपका प्राइस आपने अर्निंग का 40 टाइम्स है, कि वो 5 है वो 200 है। प्राइस और अर्निंग की रेशो है। अब बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्या? कौन सा? पहले वाला ही वाला? वो आएगा तो 15 मार्क्स से तो आएगा पक्का। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा एक क्वेश्चन और लिखो अब, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ओके और करवा देता हूं। चलो राइट डाउन क्वेश्चन। आज मैच भी देखना होगा, तो इस क्लास के बाद एक क्लास और ले सकते हो, उसके बाद देख सकते हो। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके राइट डाउन क्वेश्चन क्लास। दिस इज वोल्टर्स मॉडल क्वेश्चन। याद है वोल्टर मॉडल सबको? बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सब करते हैं। कहां से? कौन? एक सेकंड, कौन सी यूनिवर्सिटी से? कहां से की थी बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम? अच्छा फाइनेंस में ही। अच्छा अच्छा चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक्सपेक्टेड ईपीएस ₹10। देखिए इन सबसे हम क्या निकाल रहे हैं? बेसिकली प्राइस निकाल रहे हैं किसका? शेयर का। एक्सपेक्टेड ईपीएस ₹10। इक्विटी कैपिटलाइजेशन 10%, इट मीन्स KE 10%। Calculate the value of the share if return on equity is 12%। जितनी चीजें रिक्वायर्ड होंगी फॉर्मूला में सब दी जाएंगी। is 12%।
रिटर्न इज 12, आर की हम बात कर रहे हैं और के आपको 10% गिवन है. नाउ डिविडेंड पे आउट रेशियो, नंबर 1 0%, नंबर 2 40%, and number 3 100%. So 3 cases are given to you. फॉर्मूला याद है आप में से किसी को? फॉर्मूला तो कराया ना सर ने? ठीक है, कोई बात नहीं. So this is the formula. First try yourself. कोई इशू आते तो I will solve on the board. Okay. First try it yourself. If some doubt is there, I will solve it on the board. Everything is given to you. There are 3 different cases. $1200 तो possible. 120. One is 120. 112 and 100. जहां पे वैसे भी आप देखेंगे तो 100% रिटेन हो रहा है तो 100 ही आएगा वो. %100 पे आउट में 100 ही आएगा. So first is 120, second is 112, and third is 100. क्योंकि सेकंड केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा. सॉरी, थर्ड केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये होगी तो सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा. तो सिर्फ क्या बचेगा, 10/ke. 10 डिवाइडेड बाय 0.1 इज 100. क्या नहीं आ रहा, अभी देखते हैं. थोड़ा घुमा के आ सकता है आएगा तो. वैसे यूजुअली जो आते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस जहां पर प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए विद डिफरेंट मॉडल्स. ओके, डन. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एक पार्ट सॉल्व, ठीक है.
बताओ कौन सा करना है, 1 2 या 3? सेकंड रखते हैं, ठीक है। सो हाउ मच डिविडेंड पर शेयर इज, डिविडेंड कितना गिवन है आपको? 40%। अर्निंग कितनी है? 10, तो 4 पे हो गया। के कितना गिवन है? 0.1 प्लस आर कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.12 और के 0.1, ठीक है। और कौन सा केस करना है आपको? 40%। सो ये आपका 40 करें तो ठीक है, 10 माइनस 4 अगेन 0.1, सो 40 प्लस 1.2 हो जाए, कितना होगा इसका आंसर? आप कितना आएगा? 1.2 यही आएगा ना? 40 प्लस 7.2 डिवाइडेड बाई 0.1, सो 40 प्लस 72 112। क्या बेटा? अच्छा, दैट इज नॉट इन दी, दैट इज अमाउंट, बेसिकली अमाउंट की बात कर रहा है वो। मैंने यहां अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर है ये, दिस इज नॉट इन दी परसेंटेज, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो तो गिवन आपको, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड गिवन थोड़ी है वो क्वेश्चन में। यहां क्या आएगा? डिविडेंड आएगा, नॉट डिविडेंड पे आउट रेशियो। रेशियो मींस कितना, उससे आप अमाउंट निकाल रहे हो ना रेशियो से, तो आप ई का मतलब अर्निंग है पर शेयर, डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर है, नॉट डिविडेंड पे आउट रेशियो। कहां पे 10 रुपीज डिविडेंड? अर्निंग पर शेयर कितनी है? अर्निंग पर शेयर 10 और डिविडेंड पर शेयर कितने? 40%। अगर मैं डिविडेंड दे रहा हूं तो 10 का 40% कितना हो गया? 10 रुपए अर्निंग है, मैं 40% डिविडेंड पे आउट है तो 4 रुपए तो दूंगा। कब था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन से सेमेस्टर में पढ़ के आए हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, रिजल्ट नहीं आया तो है ना? अच्छा क्या? बहुत अच्छा है। अब यही नहीं पता तो अच्छा, सो मोटिवेशन अभी नहीं है, अगर रिजल्ट पे डिपेंड करता है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा आएगा तो मोटिवेशन आएगा, अदरवाइज क्या बेटा? 10 minus 10, ये 1 क्यों लिखा है आपने? ये तो 10 है ना? हाँ पूछ छोड़ा। थर्ड कौन से पार्ट की बात करो पहले बताओ। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 100% है, इसका मतलब जो भी अर्निंग है वो कंपनी क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। तो 10 रुपए की अर्निंग थी तो 10 रुपए डिविडेंड दे दिया, सीधी सी बात है। तो डी बाई की, और ये तो 10 minus 10 0 हो जाएगा वैसे ही, तो 10 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0, इट कम्स आउट टू बी 100।